The ideal integer is a composite, it not a scientist, is not a mathematician, is not a sociologist or a writer, but he may use the knowledge and technologies of this discipline in solving engineering problems. Now, we would like to call Mr. Jaykeshav Mishra for exploring this topic, physics in Indian monuments. Mr. Jaykeshav Mishra is an architect by profession and assistant professor at GL Bajaj Mathura. Thank you both of you for the introduction. Namaskaram to everyone. Good afternoon, everyone. Are you all alive? Well, I was thinking because you have arrived from lunch, so you must be feeling a little sleepy, isn't it? No. जोश तो हाई लग रहा है. Okay. So I'm an architect by profession, and frankly speaking, I'm very much interested in traveling. So I have traveled a lot since I graduated in 2012. And after that, I realized that I have an inclination towards seeing monuments. And what I realized that whenever I used to go to some place or new place, or let's say monuments, so I was very skeptical to know how they have built this and what is the science behind it. So this eventually led me to explore more and more and more. And so I just started frequently visiting more places across India. So I'll just share my experience with you. And it's a presentation which is very interactive. It has to be interactive. So interactive will be because of your questioning during the presentation. I want all of you to participate, because unless you participate, it's not going to be interactive. All right. So let's begin. So we are exploring physics in Indian monuments. So I'm not here to conclude anything, because by conclusion, I mean that I have my own set of perceptions, which I don't want to make as a science student, because I myself graduated from science side. I hope all of you are from science side, right? So I just want to ask you, what do you mean by physics? क्या होता है physics? Can someone tell voluntarily? उठ के अपना हाथ खड़ा करके, so that everyone knows you now. It is the study of nature. क्या बात है यार? Can we clap for him? It's a very good answer, because इसने कोई रटा आंसर नहीं बोला जैसे फिजिक्स के बारे में सब लोग समझते हैं. But it is a study of nature. और आपको क्या लगता है? और कोई जवाब देगा? फिजिक्स क्या है? देखो इधर, you are not here to speak the right thing, because I don't want people to speak the right thing. सब लोग सही बोलते हैं, सबको लगता है सही बोलते हैं, लेकिन गलत सब कोई सही नहीं बोलता है. सही कौन बोलता है? सिर्फ भगवान. ठीक है ना? तो हम लोग सब गलत ही बोलते हैं, तो गलत बोलना आना चाहिए. तो इसलिए फिजिक्स के बारे में और कोई बोल पाएगा? व्हाट इज फिजिक्स? किसको? हाँ चलो स्टैंड अप. अपना नाम बताओ पहले. Louder. People can't hear you. This is very normal physics. If you speak louder, then only people will be here, will be able to hear you. Yeah, your name? Yes, better mic. As an amplifier of sound, huh? So my name is Uma Chaudhary, and everything that we see around is physics. क्या बात है यार, ये भी बहुत ही interesting definition. Can we clap for her? So here the light, the atmosphere, the cameras we see, all is physics. क्या बात है, आज निकल के आ रहा है फिजिक्स है. कभी क्लास में नहीं निकला इतना जो आज निकल रहा है. Thank you. So beautiful explanation by both of you. So physics, हाँ चलो बोलो. क्या बात है, आज तो ऐसे ही रुक नहीं रहा आज. Good morning, sir. Yes, good afternoon. Yes. कोई बात नहीं, गलत बोलना है ना, गलत ही तो बोलना है. Good afternoon. सही भगवान बोलता सिर्फ. हाँ. My name is Prachi Vashisht. What I think is physics is rediscovering the pre-existing natural phenomena. Rediscovering the pre-existing. So very good यार प्राची. क्या बात है. ऐसी डेफिनेशन शायद मेरे ख्याल से गूगल पे भी नहीं मिलेगी जो हम लोग बोल रहे हैं.
Please sit. So I think what definition that you are coming up is out of your experience of what you think is physics, right? So if we say physics is everything or everything that exists in the universe that you can relate to your physicality, or let's say the physical world. So whatever exists in physical reality that you can sense is physics, isn't it? ठीक है ना? So by, let's say, if you see something, that is physics. If you hear something, that is physics. If you smell something, that is physics. If you are speaking something, that is physics. And if you can touch something, that is physics, right? All the five sense organs, if you can sense, that is entire physics. Okay. So I'll start with my traveling journey. So this is one of the few places that I went when I graduated in 2012. So can you guess this monument, by the way? हाँ, एक जना खड़े होके बोलेगा, प्लीज, वन एट टाइम. कुछ सही बोल रहा था कोई, खड़े हो जाओ यार. Humayun's tomb? Humayun's tomb? Maybe. Maybe. Why aren't you sure about this? Well, this is Humayun's tomb. You are correct. Your name? Kanak Dwivedi. Huh? Kanak Dwivedi. Kanak Dwivedi. Can we clap for Kanak Dwivedi? क्या बात है? Have you visited this monument? No. अच्छा. कहीं देखा था ऐसी इंटरनेट पे, हाँ? और किसी को कंफ्यूजन है कि हुमायूंस टूम नहीं है? कुछ और है? क्योंकि मैं ऐसा है कि मैं कभी कभी गलत जवाब पे भी सही बोल देता हूं और क्लैप करवा देता हूं. सो यू हैव टू बी श्योर वेदर इट इज दैट मॉन्यूमेंट और नॉट. आई विल कंफ्यूज यू मेनी टाइम्स. हुमायूंस टूम है? अच्छा, हुमायूं कौन था ये बताइए. एक जना खड़े होके यार, गलत भी हो तो भी चलेगा, बोलो ना. एक जना खड़े होके बोले प्लीज, हुमायूं कौन था? हाँ चलो, सब सोच रहे गलत ना हो जाए. सर, फादर ऑफ अकबर. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तुम्हारा नाम क्या था? विजय सोनी. चलो यार, विजय सोनी के लिए एक बार कम से कम कोई पहले खड़ा होता है तो उसके लिए ताली बजनी. हाँ चलो बोलो. Sir, Humayun is a great Mughal emperor. क्या बात है यार, मुगल एम्परर था. यस, ये उसने नहीं बताया, तुमने बताया. लेकिन वो उसका बेटा कौन था? Akbar. तो वो सही है कि नहीं? सही है. सही है. तो हुमायूं का फादर कौन था? बाबर. क्या बात है. और अकबर का बेटा कौन था? शाहजहां. और शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब. क्या बात है यार, यू स्टन्ड मी यार. क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू. मतलब आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम इम्प्रेस्ड क्योंकि ये सब मुझे भी नहीं मालूम था. जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मैं धीमे धीमे I started learning. Okay, so you have seen this. अच्छा, has anyone visited this monument in मतलब physical reality में? नहीं. No one from NCR region? NCR से कोई नहीं है? नहीं. NCR के आसपास के region से तो हो गए. अच्छा, where does this monument belongs to? Which place? Delhi. ये भी मालूम है लेकिन कोई गया नहीं है. चलो आप लोग जाना, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जिसने स्टार्ट करा था मुगल एरा का कंस्ट्रक्शन, और इवेंचुअली इट बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द ताजमहल. एज यू नो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड द ताजमहल. ओके, सो दिस इज हुमायूंस टूम. एंड व्हाट इज दिस? गलत आंसर. गलत है. Is there anything missing in this photograph? चलो खड़े होके बताओ. बहुत सारे हाथ खड़े हो गए अब तो. अरे हाँ, चलो आप बोलो. आप बोलो. More pillars, 4 pillars. सही बोल रहा है क्या? अच्छा, पीछे से कोई बताएगा सही है कि नहीं, और कुछ मिसिंग है कि नहीं? पीछे से कोई बताए. अभी गर्ल्स किसी ने हाथ खड़ा करा था. सिर्फ 4 पिलर्स मिसिंग है, और भी कुछ है? अभी किसी ने चश्मा लगाया हो, कह रहा दिख नहीं रहा अच्छी तरह है. कोई बात नहीं. See, we are all the same persons speaking wrong things because सही कौन बोलता है? भगवान. तो सही नहीं बोलना है.
ओके, सो 4 पिलर्स आर मिसिंग, ठीक है? अब ठीक है? नो, क्यों? 2 पिलर के पीछे दूसरा 2 पिलर और है। स्लैंट है? स्लैंट का क्या मतलब होता है? टिल्टेड है? क्या बात है, क्लैप फॉर एवरीवन। भूकंप आए तो, भूकंप आएगा तो किस तरफ टिल्टेड है, बाहर की तरफ है अंदर की तरफ? तो ताजमहल पे नहीं गिरेगा है? अच्छा, चलो ये भी हमने भी बचपन में सुना था, लेकिन ऐसा लगता है कि बात सही है। आप ठीक है? आप ठीक है या अभी भी कुछ मिसिंग है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन हुमायूंस टूम एंड ताजमहल? मतलब अगर हम हुमायूंस टूम को देखें और फिर ताजमहल को देखें, हैं? कॉमन चीज क्या है? टूम है। टॉम नहीं, टूम बोलते हैं उसे, ठीक है? इट्स टूम, TOMB। सो टूम का मतलब है मकबरा, मतलब उधर उसकी कब्र है, ठीक है ना, उसको दफनाया गया है उधर। तो ये टूम है दोनों, राइट? और भी कुछ कॉमन चीज है इसमें? अरे मुगल एम्परर दोनों, चलो अच्छी बात है। और क्या बात है, वो बहुत अच्छी बात है। वाटर इसने ऑब्जर्व करा, वाटर रिफ्लेक्शन जो पूल्स बनाए हैं सामने, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द कुरानिक वर्सेस, जो कुरान में लिखा हुआ है, जो आफ्टर लाइफ में जो रिवर्स होती हैं। ओके, सो कॉमन चीजें तो मालूम पड़ गई, डिफरेंसेस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या कॉमन डिफरेंसेस है आपको ऐसा लगता है कि दोनों के स्ट्रक्चर्स में? हैं? कलर्स, चलो बहुत अच्छी बात है। वो रेड सैंडस्टोन में बना है, ये मार्बल में बना है, राइट? इट्स अ कॉम्बिनेशन, हुमायूंस टूम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। सो दिस इज प्योर व्हाइट मार्बल, ठीक है ना? शाहजहां ने मुमताज के लिए व्हाइट चुना, वरना मुमताज उसको मारती बहुत, हाँ? लाल कैसे चुना? और बताइए क्या डिफरेंस है? सोच के, दिमाग लगाना है। 4 पिलर्स, खड़े हो जाओ यार, कौन है? बिल्कुल ही गलत, नहीं जवाब, सही जवाब है बहुत। क्या बात है, क्या नाम है आपका? गणेश गोला। क्लैप फॉर गणेश गोला यार, क्या बात है। 4 पिलर्स, 4 पिलर्स का एडिशन हुआ ताजमहल में, हाँ? चलो गणेश गोला जी, अब आप ये बताइए कि ऐसा क्यों करा उन्होंने? धनेश गोला, धनेश गोला, राइट? धनेश गोला नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गई। सो ये बताइए कि इसमें 4 पिलर्स का एडिशन क्यों करा? नहीं पता, सोच भी नहीं सकते? और कौन सोच सकता है? माइट बी पॉसिबल वॉच टावर हो। अच्छा, और आगे कुछ? वॉच टावर भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ हाइट, इट इज एट अ हाइट। उधर से और आगे कोई बताए प्लीज? गिव अप कर दिया क्या? अच्छा लुक देने के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए, हंसी तो आ रही है, लेकिन इसने जो जवाब दिया ना बहुत मजेदार है, क्योंकि इसने फिजिकल जो हम लोग रियलिटी देखते हैं उसको सोच के बताया है। इसने सोचा कि यार क्या है, क्या क्या करने के लिए? अच्छा लुक देने के लिए। और वाकई में अच्छा लुक आता है मीनार जब ऐड हो जाती है ना, ठीक है ना? क्योंकि हम अगर हुमायूं टूम इसको देखें तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना, इसके साथ अच्छा लग रहा है, राइट? ओके, अभी इस पे आते हैं वापस। पहले ये ताजमहल इन इट्स फुल ग्रैंडर, यू कैन सी, सो ब्यूटीफुल। ये क्या चीज है? टॉम एंड जेरी। मुझे ऐसा लगा था आप लोग बहुत पढ़ाकू हो, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसे। तो टॉम एंड जेरी है ये, ओके। और ये क्या चीज है? क्या बात है यार, सब लोगों ने बहुत कुछ। क्या, क्लैपिंग फॉर एवरीवन यार।
मूवी बफर्स हो आप, हाँ? अच्छा, अवतार और इसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों मूवी है, राइट? और दोनों ही एनिमेटेड मूवी है, ठीक है ना? जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स दूसरी वाली मूवी में बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें कम हुआ है, इसमें भी यूज हुआ है एनिमेशन, एनिमेट करना, ठीक है ना? आइडिया है आपको? तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवतार एंड टॉम एंड जेरी. व्हाट इज दैट? This answer will lead you to the answer of the difference between Taj Mahal and Humayun's tomb. ये क्लू है. हाँ चलो, बहुत बढ़िया. फिर से दोबारा. Perhaps this Tom and Jerry movie is quite comical, but Avatar is sci-fi movie. इस साइंस फिक्शन, Yes, राइट? sir. ओके, बैठिए. अच्छा जवाब है, लेकिन इससे हम उसको आंसर नहीं कर पाएंगे, ताजमहल और हुमायूंस टूम के क्वेरी को. अच्छा जवाब है, साइंस फिक्शन है और वो कॉमिक मूवी थी, टॉम एंड जेरी एपिसोड्स. हाँ चलो बताइए. नहीं? अच्छा, और ये क्या चीज है? तो अवतार ऐसे देखी थी या डाउनलोड करके देखी थी टॉरेंट से? टीवी पे देखी थी? थिएटर पे किसी ने नहीं देखी अवतार? ब्रह्मास्त्र देखी? जब ब्रह्मास्त्र देखी है ना 3D ग्लासेस लगा के, तो जो आप वैसे मूवीज देखते हो और 3D मूवीज देखते हो, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ, रियलिस्टिक. किसने बोला रियलिस्टिक? खड़े हो जाओ, नाम बोलो अपना. नितिन सारस्वत. वेरी गुड. रियलिस्टिक लगती है. तो नितिन के हिसाब से रियलिस्टिक का मतलब है, इफ आई एम करेक्ट, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इमर्सिव एक्सपीरियंस बहुत आपका बढ़ जाता है. करेक्ट? जब भी हम 3D मूवी देखते हैं तो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, इन्वॉल्व कर लेता है वो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो शायद आपके सामने ही है. तो जो कि अवतार मूवी में भी था, immersive experience, which was a record-breaking 3D animated movie ever produced by James Cameron. And this is a 2D animated movie. So this is a 2D animated and this is a 3D animated movie. तो this is the difference, क्योंकि इसमें 2D हम लोग sketches बनाते थे. 2D sketches को animate करते थे frame में, मतलब 30 sketches एक सेकंड में हम लोग एकदम से इसको दिखाते थे, तो हमें मूवी टाइप का लगता था. तो ऐसे हर फ्रेम, जैसे 30 फ्रेम्स आपने देखा होगा जो हम लोग टीवी देखते हैं, दैट इज 25 फ्रेम्स पर सेकंड और 30 फ्रेम्स पर सेकंड. तो ये भी ऐसे 25 स्केचेस बनाते थे, तो एक सेकंड की मूवी बनती थी. सो दिस इज 2D एनिमेशन. इसमें ना इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं आता. मजा तो आता है क्योंकि उसमें कॉमिक सेंस है, बट इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन मूवीज में आया. इससे हम क्या समझ सकते हैं हुमायूंस टूम और ताजमहल में? कोई बता सकता है रिलेट करके? नहीं? गिव अप? हाँ, बोलो. बताओ ना, क्या बोल रहे हो? बोलो तो, खड़े हो जाओ. क्या बात है यार, क्या बात है. देखो तुम सही बोल रही थी, अगर मैं तुम्हें पॉइंट आउट नहीं करता हूं तुम्हारा आंसर, अब तुम हीरो बन गए हो. बिल्कुल करेक्ट. क्या नाम है आपका? हाँ जी, कृतिका चौधरी. हाँ चलो, वेल डन कृतिका, बिल्कुल. हाँ वो उसने बोला वो. क्या नाम है आपका? शिवम के लिए भी क्लैप बजा दो यार, क्या बात है. क्लैपिंग तो फ्री में मिलनी चाहिए दोस्तों से. तो बहुत सही बोला आपने. इसमें अगर हम देखें तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ डीप दैट हुमायूंस टूम्ब इज. ठीक है ना? तो वो इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं आ पाता. तो इसी को सोच के इन्होंने करेक्शन करा, जो ताजमहल में दे गेव अ मॉन्यूमेंटल 4 मिनरेट्स. 2 भी नहीं बनाई, 4 बनाई, जिससे आपको डेप्थ का आइडिया होता है. तो यू अंडरस्टैंड द ग्रैंडियर ऑफ द ताजमहल जब आप जाते हो. आप गए हो ताजमहल? कितने लोग गए हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे. ताजमहल, क्या बात है यार, बहुत ज्यादा, बहुत सही, एक्सीलेंट.
वीडियो को प्ले करना है सर। बैक, इस पे माउस पे विल प्ले अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू। गौर से देखना जरा। तो आपको ये समझ आया कि जो वाव फीलिंग आती है ताजमहल में वो क्यों आती है? आपने एक पॉइंट पे देखा होगा कि वो वाव फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। देखा है आपने, जैसे आप ताजमहल में घुसते हो तो ये आपने महसूस करा है सबने, वो वाव फीलिंग आती है। तो आपको मालूम है कि ये वाव फीलिंग इंटेंशनली बनाई गई थी। ये सिर्फ ताजमहल की ब्यूटी नहीं है, जस्ट बिकॉज हाउ दे हैव सेट द ताजमहल इन कॉन्टेक्स्ट टू द गेट एंड द अप्रोच, कि ताजमहल को आप अप्रोच कैसे करेगा, सारी फिजिक्स लगी हुई है इसमें। मजे की बात है। तो बता सकता है कोई कि ऐसा क्यों होता है, वो वाव फैक्टर क्यों आता है? जैसे आपने अभी देखा, कुछ अच्छा लगा आपको वीडियो? तो वाव फैक्टर कैसे आता है कि ताजमहल, क्या बात है, वाह ताज। गेट से घुस के ही लगता है ना? किसने बोला ये आंसर? हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अच्छा वही विपिन। विपिन, ओके विपिन, थैंक यू। सो ही सेड कि हाँ ताली बजा सकते हैं, क्या बात है, ताली बजवानी है सबको। तो विपिन ने बोला कि गेट पे जो वाव फीलिंग आती है वो गेट पे आती है, उसके बाद इतना नहीं लगता। जब तक आप ताजमहल के क्लोज ना जाओ तो आप क्लोजली देखते हो मार्बल की कैसे इन्होंने नक्काशी करी है, तब अच्छा लगता है। बट वो जो वाव फीलिंग है वो गेट पे ही आती है, आपने देखा है, ठीक है ना? तो गेट को थोड़ा समझते हैं जरा। आपको कुछ लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट है, एक डार्क रूम है जिसमें आपको यू एंटर, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट गेट। वेस्ट से एंट्री होती है, ठीक है ना? दैट्स कॉल्ड द वेस्ट गेट। वेस्ट की साइड है और वो ईस्ट की साइड है ताजमहल। तो जब सूरज उगता है, जब हम लोग ताजमहल का जो कैंपस खुलता है, तो सूरज जो है ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि वो ताजमहल के ऊपर रिफ्लेक्शन मार रहा होता है। मतलब रेस पीछे से नहीं होता है, क्योंकि जब ईस्ट पीछे से उगेगा और जब तक आप ताजमहल जाओगे तब तक वो ताजमहल के ऊपर मार रहा होगा। सो यू गेट अ गुड वेल लिट ताजमहल व्हेन यू गो टू ताजमहल, ठीक है? और ये जो वेस्ट गेट है इसके अंदर कोई लाइट नहीं होती। ये लोग आर्टिफिशियल लाइट भी नहीं जलाते, जान मुश्किल, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं जलाते हैं कोई भी आर्टिफिशियल लाइट। पूरा अंधेरा रखते हैं इधर वेस्ट गेट में, और कोई भी विंडो नहीं है इसमें, ठीक है ना? इंटरेस्टिंगली, सो इट इज अ डार्क रूम। द ओनली लाइट दैट यू कैन सी इज फ्रॉम द ताजमहल। तो इसमें फिजिक्स लगी हुई है बहुत जबरदस्त। आपने देखा है कि जब आप किसी धूप, जैसे आप छत पे जाते हैं, बहुत बिल्कुल 1-2 बज रहा है या 12 बज रहा है, तो आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारी लाइट आ रही होती है। अगर आप सूरज की तरफ भी देखोगे तो आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं आंखें, अगर हम इसको फिजिक्स मतलब सिंपल टर्म्स में बोलें। तो अगर हम आई को देखें तो आई में एक प्यूपिल होता है जिसको हम लेंस भी कह सकते हैं। जैसे कैमरे का लेंस होता है ना, बड़ा अपेरेचर हो जाता है, ज्यादा लाइट ले सकता है, ऐसी आई के अंदर भी लेंस होता है। सो जब आईज डार्क रूम में जाते हैं तो क्या होता है? प्यूपिल बड़ी हो जाती है, राइट? करेक्ट। योर नेम? ना मतलब प्रिया। वो क्लैप फॉर प्रिया। प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, इट एक्सपैंड्स व्हेन यू मूव इन डार्क प्लेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आई आपकी लाइट को थोड़ा ढूंढती है, कहीं भी थोड़ी सी भी, जैसे आप अंधेरे में जाओगे ना तो धीमे धीमे आपका फोकस बढ़ता है। आपने देखा, जैसे आप किसी डार्क रूम में चले गए, मम्मी ने बोला कि यार उस कमरे में से, स्टोर रूम में से लिया कुछ, तो जैसे आप गए स्टोर रूम में तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है,
लेकिन आपने धीमे धीमे अगर देखने की कोशिश करी, जैसे जैसे फोकस अपना करा, तो धीमे धीमे चीजें दिखती हैं आपको, क्योंकि प्यूपल का साइज बड़ा हो रहा है व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग, ठीक है ना। सो मोर लाइट कैन एंटर योर आईज। तो इस ताजमहल में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो डार्क रूम, आप बहुत ही ब्राइट लाइट से आप डार्क रूम में घुस रहे हैं, तो आपकी आईज रिलैक्स्ड हो रही हैं, इजंट इट। आईज को रिलैक्स मिलता है। जब भी आप सोना चाहते हैं तो आप लाइट बंद करते हैं कि नहीं, या खुला छोड़ देते हैं? लाइट बंद कर देते हैं तो यू फील बेटर, राइट, यू फील मोर रिलैक्स। सो आईज सूदन आउट, as you can see the pupil, right, that's the lens। और आप ये देखिए कि जो डिस्टेंस फोकस होता है वो आईज कैसे देखती है, उस पे कभी भी आईज की मसल पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है। when something is coming from a distant, okay, the light coming from a distance, in the case of Taj Mahal it is the diagram above it, और जो नीचे है जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आईज को स्ट्रेन पड़ता है। तो आपने देखा होगा अक्सर आपका ये हाल होता है जब आप 1 घंटा किताब पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सेम प्रिंसिपल जो ताजमहल में अप्लाई करा है वेस्ट गेट पे, कि जब आप डार्क कमरे में एंटर करते हैं तो आपकी आईज रिलैक्स्ड हो जाती हैं, एंड द ओनली लाइट दैट यू सी इज कमिंग फ्रॉम द ताजमहल व्हिच इज वेल लिट। तो और धीमे धीमे जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो उसकी मिनरेट्स भी अपीयर होना स्टार्ट करती है। सो दैट इज हाउ यू गेट द ग्रैंडियर। धीमे धीमे आपको मिस्टीरियस चीज रिवील करती है। सो दैट इज द अप्रोच दे हैव अप्लाइड इन ताजमहल। सेम प्रिंसिपल एज वी सी मूवीज इन थिएटर। डार्क रूम में आपने देखा होगा, अगर आप लाइट जला दोगे सारी मूवी थिएटर की तो आपको अच्छा लगेगा मूवी देखने में? नहीं आएगा ना। तो वही प्रिंसिपल ताजमहल में अप्लाई कर रहा है। ओके, कैन यू गेस दिस मॉन्यूमेंट? बहुत इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है। क्लू ये है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स ऑफ इंडिया। किला जिसको बोलते हैं, किला भानगढ़ फोर्ट, हॉन्टेड फोर्ट। भानगढ़ नहीं है, गुड अटेम्प्ट, लेकिन उस स्टेट में है जहां पे भानगढ़ है। आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट जो अंबर फोर्ट है वो जयपुर में है। इट्स नॉट अंबर फोर्ट। और कोई राजस्थान किसने घूमा है? कोई राजस्थान से बिलोंग करता है क्या? चित्तौड़गढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़ भी नहीं है। गूगल अर्थ पे देखो इसका है। मानगढ़ नहीं, म सही है उसमें सिर्फ, द एम इज करेक्ट। सो इट इज मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर, जोधपुर में है, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट टुवर्ड्स जैसलमेर तो जोधपुर पड़ता है, उसके बाद जैसलमेर आता है, जयपुर जोधपुर जैसलमेर। तो ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, बिल्कुल हिलॉक पे बना है, बिल्कुल हिल के ऊपर। और जो जोधपुर का जो स्टोन है बहुत ही हार्ड होता है, इट्स कॉल्ड चित्तर। वर्ल्ड का मतलब मोस्ट क्या बोलते हैं टफेस्ट स्टोन है, सैंडस्टोन, उससे बना है और उस चट्टान पे बनाया इन्होंने। यू कैन सी द शेयर size of the fort, that is me actually standing there. You can see the fortress walls, how high it is, ठीक है ना। You can see the proportions। इधर भी देख सकते हो आप, हम लोग फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्ट के अंदर बहुत सारे हवेलीज बनी हुई हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा। और ये एक कोर्टयार्ड है हवेली का, जिसमें यू कैन सी द इंट्रिकेट डिटेलिंग इन स्टोन इटसेल्फ। स्टोन में आप देख रहे हो बहुत ज्यादा नक्काशी हुई है, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग, और सब हैंड डिटेलिंग हुई। बीच में कोर्टयार्ड है, वरांडा जिसको हम बोलते हैं। ये भी आप देख रहे हो बिल्कुल डिटेल कोर्टयार्ड है, राइट। इसको हम अगर जूम थोड़ा करके देखते हैं तो कैसा लगेगा? ये है, ठीक है। देख सकते हो आप कि ये जाली है, आर पार है, मतलब जहां जहां आपको होल्स दिख रहे हैं दैट इज वॉइड। तो ऐसा क्यों करा इन्होंने? मतलब सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी क्या चीज है इसमें? वेंटिलेशन। हाँ चलो पीछे से, बहुत अच्छे, पहले पीछे से लेते हैं। अपना पहले नाम बोलिए। माय नेम इज आयुष शुक्ला। वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए हाँ। शुक्ला जी। और सर रात में मतलब लाइट नहीं आएगी तो मून की रेस पड़ेंगी इसमें। मून की रेस बढ़ेंगी, पड़ेंगी तो मतलब अंधेरा नहीं। अच्छा अंदर पड़ेगी, हाँ रात के लिए। हाँ
और सुबह के लिए वेंटिलेशन। बात तो सही है, मून की रोशनी भी आएगी रात में, थोड़ी बहुत तो आएगी, हालांकि इतनी नहीं आएगी। और वेंटिलेशन, वेरी गुड यार, वेंटिलेशन यू अंडरस्टैंड, ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि आपको वेंटिलेशन मालूम है। और क्या है सिर्फ वेंटिलेशन के लिए? व्हाट डू यू मीन बाय वेंटिलेशन? हाँ भाई, वेंटिलेशन क्या मतलब है? हेलो शुक्ला जी, वेंटिलेशन क्या मतलब है ये तो बता दीजिए। एयर आएगी तो ब्रीथ करने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं यार, ये नहीं है मतलब वेंटिलेशन का। एयर आएगी तो ब्रीथ करने में मुश्किल नहीं होगी, फ्रेश एयर आएगी। सो मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब हवा चलेगी तो अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी, राइट? चलो और बताइए, और कौन? गुड, बैठिए। पीछे कोई हाथ खड़ा कर रहा था, सो आई वांट टू स्पीक। फॉर सेफ्टी पर्पस। क्या बात है, तो बिल्कुल ही स्ट्राइकिंग आंसर है। सेफ्टी पर्पस कैसे? अगर सेफ्टी होती तो पूरी डेड बॉल बनानी चाहिए थी ना, उसमें पोस्ट को दे दिया, इससे तो दिखेगा भाई, बल्कि आर पार हो गया है तो। So, fort are basically for the elites or the noble class people. So they have the more chance to a secret attacks. So for the safety purpose. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सीक्रेट अगर रखना है तो डेड बॉल बनानी चाहिए थी ना। इसमें इतने सारे हर जगह पंचर्स दे दिए, इससे तो कोई भी देख सकता है। उनके पास तो दूरबीन भी होती है, दूरबीन से देख लेंगे छेद में क्या हो रहा है भाई, और चारों तरफ से हो रहा है ये, है ना? सनलाइट जब आती है तो इसमें कुछ ऐसा है कि अंदर से हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने, फिजिक्स है इसमें, करेक्ट। वेल डन। योर नेम इज? सर रोमा चौधरी। रोमा चौधरी, क्या बात है। और बताइए कोई? हाँ, ये कहां पे है? जोधपुर में है ना? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे हो? माइक चाहिए, पहले आंसर दो। सर माय नेम इज नवीन चौहान। व्हाट? नवीन चौहान। अच्छा, जल्दी बोल दिया तुमने, नवीन चौहान। ठीक है, चौहान जी बोलिए। सर व्हाट शुड आई स्पीक, मतलब वेंटिलेशन और स्पोर्ट? वेंटिलेशन तो बता दिया ना उसमें, तुम्हारे दोस्त ने। सर मतलब जो इसमें छेद हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जैसे कोई तेज हवा इस पे अटैक करे तो ये गिरे ना, मतलब ये कोलैप्स ना हो, जैसे तेज हवा चले या कुछ भी। तो ऐसे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो कि हमने देखी। सर ये पतली है अगर ना, इसमें हवा लगेगी तो ये गिर जाएंगी क्या? सर वो पतली पतली है, हैं? वो पतली पतली है। क्या नहीं है? दे आर थिन बॉल्स। अच्छा, गुड, थैंक यू सर। गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। हाँ बोलो। क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनेगा, जैसे इधर बन रहा है, देखो पैटर्न बन रहा है ना, इधर पैटर्न बन रहा है। गुड। और कोई जिसके लिए बना है वो आंसर ढूंढ रहा हूं कहीं मिले। हाँ बोलो बोलो, इसके बाद। अरे एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड। हाँ हाँ, चलो ताली बज जानी चाहिए आपके लिए। क्या है नाम है? शिवम। शिवम, इसके हिसाब से गर्मी बहुत है राजस्थान में, जो कि है, उसके लिए इन्होंने बनाया है। तो ये कह रहा है कि वेंटिलेशन, हवा आएगी अंदर तो राहत मिलेगी, बस। चलो अच्छी बात। तो पीछे कोई खड़ा हो रहा था वो, अरे एनिमी के पीछे क्यों पड़ गया तो। गुड। हाँ बोलो। अंदर की जो गर्म हवा होगी बाहर आ जाएगी, और बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर चली जाएगी, है? वाह क्या बात है। सही बात है, गर्म हवा जब अंदर आएगी तो उसको बाहर भी तो निकालना है, वो इसी से बाहर चली जाएगी, है? तो वेंटिलेशन। हाँ चलो, डिजाइन तो अच्छा, ओके गुड, डिजाइन तो है ही अच्छा, सुंदर लगता है। ओके चलो बैठो। ऐसा है, एक भाई साहब ने अच्छा आंसर दिया था कि गर्मी बहुत है जोधपुर में, ठीक है ना? टेम्परेचर ऑफ द रेंज 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री पे हो जाता है। और आप पत्थर को कभी छू लेना गर्मी में, आपका हाथ जल जाएगा, आप छत पे भी पैर नहीं रख सकते अपने, ठीक है ना? देखा आपने कभी गर्मी में छत पे पैर रख के? ठीक है ना, टॉम एंड जेरी बन जाते हैं ना बिल्कुल उसमें।
तो ये जो स्टोन जालीस हैं, ये क्या करती हैं कि अच्छा ओके, ऐसे नहीं बता लें, ये अंदर से व्यू है, ठीक है ना। किसी ने ये फिजिक्स में देखा है डायग्राम, ये क्या हो रहा है, ये देखा है कभी किताबों में? सबने आईआईटी की तैयारी तो करी थी, लेकिन डायग्राम भी देखा होगा ऐसा। बर्नौली, वेंचुरी, कुछ पढ़ा है? पढ़ा। अच्छा, क्या है बताओ भाई, पढ़ा तो है, बता सकता है कि वो क्या है, प्रिंसिपल क्या बोलता है उसका प्रैक्टिकलिटी में? डेफिनेशन तो रटी थी सर, भूल गए, लेकिन क्या था वो, बताएगा कोई? Okay, I want 2 volunteers from 1 boy and 1 girl. We will demonstrate something to understand this. कोई आ सकता है, कोई वॉलंटरी आ जाए, कोई भी आ जाओ यार, आ जाओ, आओ। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे बीच में से आओ भैया, इधर से आ जाओ। तुम कहां से आ रहे हो? उधर बहुत भीड़ है। योर नेम इज? है खुशबू चौधरी, एंड योर नेम इज? हाँ, यश। खुशबू एंड यश। खुशबू, क्लैप फॉर देम प्लीज। अच्छा, इसको बीच में लगाओ जरा। हाँ, इसको छोड़ दो, ये माइक चलो इधर रख, नहीं बीच में रख दो इसे। हाँ, इसको रख दो, उधर ले जाओ बीच में। हाँ, रख दो इधर, जस्ट कीप इट। इसको उधर रखो। हाँ, खुशबू आप उधर जाओ, उसको प्लग से कनेक्ट कर देना। उसको क्या कोई कह रहे सफाई अभियान है? सफाई होएगी ना, डाउट्स की सफाई होएगी इसमें। Okay, so this is an air blower. It will blow warm air, and we'll see what happens. Can we cool it down? We'll see that. It will take 30 to 40 seconds to warm down. The machine will warm and then it will blow hot air. आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी और आएगा। डर तो नहीं लग रहा, जल तो नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं। एंड दिस इज अ फनल, ओके, जिसमें आप देख सकते हो इधर का इसका जो डायामीटर है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस इज अ नोजल, राइट? कैन यू सी ऑल ऑफ यू? इधर इसका डायामीटर बहुत ज्यादा है, इधर बहुत कम हो गया है। वार्म एयर अभी होएगी। एयर डेंसिटी को और स्पीड में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे आज। एयर डेंसिटी, स्पीड एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, हमने फिजिक्स में तो पढ़ा है, लेकिन आज उससे प्रैक्टिकली देखेंगे। क्या वार्म एयर आई? कम आ रही? 10 seconds more. We'll just wait for the machine to throw hot air more.
तो हम लोगों ने क्या देखा, कोई इसे समझा सकता है? हाँ खुशबू, आप समझा सकते हो क्या देखा? गर्म हवा ठंडी कर दी, तो ये तो जादूगर टाइप का हो गया यार। गर्म हवा ठंडी कर दी तो कैसे हुई ये? हमने क्या करा? हाँ हुआ क्या, इसमें कोई बताएगा? बताओ चलो। सर जो मतलब आगे वाला था ना वो एरिया कम हो गया था इसकी वजह से, तो जो एयर थी वो वार्म एयर वो ठंडी हो गई थी। ओके तुमने तो बिल्कुल एज इट इज बताया, गुड। बट कोई और इसके इन डेप्थ जाएगा? प्लीज खड़े हो जाओ। स्पेक्स, अपना नाम जरूर बताना। सर माय नेम इज आयुष शुक्ला। सर एयर कंप्रेस होएगी तो सर ठंडी हो जाएगी, तो कोल्ड एयर फेंकेगी। एयर कंप्रेस होगी तो ठंडी हो जाएगी, क्या बात है यार शुक्ला जी। क्लैप फॉर शुक्ला जी प्लीज। बहुत अच्छा। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, फिजिक्स का ग्राफ है, तो अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं एयर की, वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। दैट सेम प्रिंसिपल हैज बीन अप्लाइड इन दी हवेलीज ऑफ जोधपुर, राजस्थान, जैसलमेर। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वार्म विंड्स जब चलती हैं जैसलमेर में या जोधपुर में, तो दे हैव द टेंडेंसी टू स्ट्राइक द वॉल। जो भी वॉल उनके सामने आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो एकदम स्ट्राइक करेंगी विथ फोर्स। और जैसे वो स्ट्राइक करेंगी इन जालीज पे, तो ये छोटे होल्स से वो पास करेंगी और वो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा उनका। तो अंदर जो उनको ब्रीज मिलेगी, जो भी इनहैबिटेंट्स है, दैट विल बी मच कूलर देन व्हाट इट इज आउटसाइड. So this is the ingenious formula that the people of Rajasthan they have built for themselves. So I think it deserves a clap. Is this not? This technology deserves a clap because आज की युग में जब हम लोग एयर कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं और उधर उस वक्त जब कुछ नहीं था, तब भी ये लोग बहुत कंफर्टेबल अंदर टेम्परेचर्स को बना पाते थे. तो दिस इज अ वेरी इंजीनियस टेक्निक डन इन इंडिया. This is again a Haveli in Jaisalmer. We have moved towards west again. जोधपुर से और आगे जाएंगे तो जैसलमेर आएगा, ठीक है ना. All these places जो मैं आपको photographs दिखाऊंगा, all are clicked by me. I have personally visited जैसलमेर also. और आप ये देख सकते हो कि जैसलमेर में भी ये हवेली आप देख रहे हो बहुत ही इंट्रिकेट है. और इसका फसाड अगर हम देखें आउटर, तो ये पूरी जालियों से बना हुआ है. और इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ओवरहैंग्स हैं, मतलब बाहर की तरफ छज्जे टाइप के निकले हुए हैं, ठीक है ना. तो दीज आर सन ब्रेकर, जो सन को ब्रेक करते हैं. ऊपर वाला जो छज्जा निकला है वो नीचे की तरफ शैडो मारेगा. ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिवली नीचे जो सारे हैं, और सारी जालियां जो लगी हुई हैं वो उनका सेम प्रिंसिपल है जो अभी हमने देखा. एयर को डेंस कर रहे हैं हम लोग. जैसलमेर में एक समस्या और है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है ना. इट्स अ डेजर्ट एरिया, पूरा रेगिस्तान है और इतनी गर्मी हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है. तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि इफ यू सी द लेन्स, दीज आर वेरी नैरो लेन्स. आप देख रहे हो ना, पतली पतली गलियां हैं. उनमें से एक घर दूसरे घर के बहुत पास है, मेरे ख्याल से 4 फीट का डिस्टेंस होगा सिर्फ. लेकिन आप देखो हो क्या रहा है. कैन यू एक्सप्लेन दिस? कैन समवन एक्सप्लेन दिस कि क्यों कर रहा है ऐसे? नैरो लेन्स क्यों है? स्टैंड अप. धूप से बचने के लिए. तो एक बिल्डिंग, क्या नाम था आपका? दक्ष. ओके, क्लैप फॉर दक्ष प्लीज. तो दक्ष ने बोला कि एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग को शैडो देगी, राइट, धूप से बचने के लिए. तो ऐसे आप देख सकते हो नैरो लेन्स कितनी शेडेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द शैडोज दैट दे पुट ओवर ईच अदर. एंड यू कैन सी दीज आर द कोर्टयार्ड्स इनसाइड. अंदर हवेलियों के अंदर ना एक कोर्टयार्ड होता था, वरांडा जिसको बोलते थे. राजस्थान में इसको चौक भी बोलते हैं.
तो ये आपको सारे ट्रेडिशनल राजस्थान के घरों में भी मिलेगा। आई एम श्योर आपके कुछ किसी के अगर घर होगा जो मतलब फ्लैट में नहीं रहते होंगे, जिनका इंडिपेंडेंट घर होगा पुराना गांव में भी, तो उनमें भी आपने देखा होगा बरांडा होता है बीच में, होता है कि नहीं? तो उसका रीजन है, ऐसे नहीं था कि दे दिया भाई कि अच्छा लगता है। तो ये जो कोर्टयार्ड्स हैं, इफ यू कैन सी, दीज आर नॉट सो वाइड कोर्टयार्ड, ये छोटे कोर्टयार्ड्स हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादा धूप नहीं आ पा रही है इसमें, लेकिन हवा जरूर आ रही है ना? आप देख रहे हो शैडो पूरा है, धूप ऊपर से आ रही है लेकिन पूरी नीचे तक नहीं जा पा रही है। ये भी आप देखो पूरा शेडेड है कॉरिडोर, ये पूरा कोर्टयार्ड है, सच अ ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड। इसमें आप ये देखिए कि अंदर की तरफ इतनी जाली वर्क नहीं करा है ना? अंदर इतना जाली वर्क नहीं है जितना बाहर है, ठीक है ना? ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदर की तरफ इतना जाली वर्क नहीं है जितना बाहर की तरफ जाली वर्क है। ओके, so this is again the photographs of the courtyard. You can see the sunlight coming on top, but it's not able to, come downwards. This is the courtyard from ground floor. कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता, क्या है मतलब? ऐसा क्यों करा होगा इन लोगों ने? बाहर की तरफ जाली, अंदर की तरफ छोटा कोर्टयार्ड, ठीक है, और अंदर की तरफ जाली नहीं है। वॉल्स ज्यादा हैं, देखा आपने? प्लेन वॉल्स ज्यादा हैं, थोड़ी ओपनिंग्स हैं क्योंकि वो फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए, लोग आएंगे जाएंगे तो कुछ ओपनिंग्स तो चाहिए, बट आइडिया। हाँ जी, हाँ चलो, कोई देख ही नहीं रहा यार, कोई देखो तो सही, उसे तब से हाथ खड़ा कर रहा। हाँ, क्या बात है यार, ये अपना नाम बताओ, तो सुपर्ब नाम। इसको माइक दो जरा प्लीज। कुणाल बोलिए फिर से अपना आंसर। सर वो बाहर से ठंडी हवा आएंगी तो अंदर से गर्म हवा जो ऊपर की ओर जाती है उसके लिए। तुमने एक और चीज बोली थी, वार्म एयर, वो हल्की होती है इसलिए वो ऊपर जाती है। सो कैन वी क्लैप फॉर हिम प्लीज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। This is exactly the principle what they have applied in the Havelis of Jaisalmer. आपने देखा, हमने जैसे समझा कि जालियों से जब वो हवा आती है वार्म एयर, तो वो ठंडी हो जाती है। और इन कोर्टयार्ड्स में, क्योंकि जस्ट रूम्स के जस्ट अंदर की तरफ कोर्टयार्ड है, बाहर की तरफ वो जाली थी, तो आपने देखा वो ठंडी हवा तो अंदर आ रही है लेकिन उसको एस्केप भी तो करना होगा। जब ठंडी हवा किसी के ऊपर पड़ती है, किसी जैसे हमारे ऊपर पड़ती है कोई ठंडी हवा, तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? वो हीट एक्सचेंज होता है, राइट? हमारी हीट को वो लेती है और वो खुद गर्म हो जाती है, इजंट इट? जब ठंडी हवा हमारे ऊपर आती है तो वो खुद गर्म हो जाती है, हमारी बॉडी में हीट ले लेती है, सो दैट इज व्हेन वी फील कूल। ओके, हमें ऐसा लगता है कि अभी ठंडा हो गया है, तो वो हमारी हीट ले लेती है। इन एक्सचेंज दैट एयर इटसेल्फ गेट्स वार्मर एंड इट राइजेस अप, बिकॉज वार्म एयर राइजेस अप, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो बाय फिजिक्स इट इज नेचुरल, जो भी चीज हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी। जैसे तेल की ऑयल होता है, उस ऑयल और वाटर को मिलाओगे तो क्या चीज फ्लोट करती है ऊपर? ऑयल, बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर। सो सिमिलरली एयर। सो हम देखते हैं कि जैसे ही वार्म एयर जमीन पे इंसिडेंट होती है तो वार्म एयर विल राइज और उधर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना? क्योंकि वार्म एयर ऊपर चलेगी तो उधर लो प्रेशर बनता है। ऐसी क्या है, कोल्ड एयर जब ऐसी विंड पे पड़ती है तो हीट एक्सचेंज होता है, फिर वार्म एयर बन जाती है, तो वार्म एयर फिर ऊपर चली जाती है। ये देखा है ये डायग्राम किसी ने? हाँ, किसमें देखा है? क्या है? 11th क्लास में देखा है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये देखा है? फ्लूइड वाले, वेरी गुड। फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाँ बोलो। हाँ, वेंचुरी इफेक्ट, वेंचुरी मीटर। आपका नाम क्या है? शुक्ला, है ना? शुक्ला जी के लिए फिर से ताली हो जाए, बहुत सही बताया इन्होंने। तो वेंचुरी इफेक्ट, ही सेड इट राइट कि वेंचुरी मीटर बोला उसने, बट इट इज प्रोटोटाइप ऑफ वेंचुरीज प्रिंसिपल, वेंचुरी इफेक्ट।
ठीक है ना। इसमें आप ये देखेंगे फ्लूइड जा रहा है, उसको एक कॉन्स्ट्रिक्शन मिला, मतलब उसकी नोजल हमने कम कर दिया, उसका डायमीटर, जिससे वो फ्लो हो रहा है, और फिर वापस कर दिया उतना ही। तो इधर क्या हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वही प्रिंसिपल बिल्डिंग्स में अप्लाई हो रहा है, बहुत मजे की बात है। तो इधर आप देख सकते हो कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही, अच्छा हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही इधर प्रेशर बढ़ता है, वेंचुरी इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे ही अगर कोई एक प्रेशर वाटर का चल रहा है और हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया जहां पे नोजल की डायमीटर कम है, तो उधर से स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, राइट। और जैसे ही हाई स्पीड हो जाती है उधर प्रेशर लो हो जाता है। तो लो प्रेशर क्या करता है, इट क्रिएट्स अ सक्शन। सो इफ यू सी दिस डायग्राम, ये वाला जो फ्लूइड है जो सेकंड सिलेंडर में है वो सक हो रहा है, जस्ट बिकॉज लो प्रेशर बन गया है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ गई है फ्लूइड की। सो इट इज सकिंग एयर, और लेट्स से sucking the fluid in the second cylinder, that point जो constricted है। आप देख सकते हो इसमें कि ये हाई प्रेशर चल रहा है और हमने इधर कर दिया उसको constrict, नोजल को डायमीटर कम कर दिया, तो नीचे का जो फ्लूइड है वो खिंचता हुआ ऊपर चला जाता है उसी फ्लूइड में, because a low pressure is generated over here. You see the diagrams of these हवेलीज, if you relate to this, अगर आप पहला डायग्राम देखो, वेंचुरी ट्यूब एक है और उसमें से हवा निकल रही है, और हुआ क्या कि जहां भी कंस्ट्रिक्ट करा उधर से नीचे की तरफ इन्होंने नोजल करा, उधर से एयर सक हो गई जो नीचे की तरफ थी। एंड इफ वी रेप्लिकेट दिस इन हाउसेस, अगर कोई विंड ऊपर से चल रही है छत पे से, ठीक है ना, किसी का हट है, अगर ऊपर से ओपनिंग है, तो होगा क्या कि उस पॉइंट पे, क्योंकि जब हवा चल रही है उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो हुआ क्या कि उसका वो एरिया कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे से अगर आप हवा को पास करो और बीच में बहुत बड़ा सा पत्थर रख दो, तो पत्थर के ऊपर से जो हवा जाएगी वो हाई स्पीड हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि बीच में आपने ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया, तो उसका डायमीटर कम हो गया। तो यही हो रहा है कि घर बीच में आने की वजह से वो जो विंड जो चल रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला, तो ऊपर की तरफ जो विंड चलेगी वो हाई स्पीड हो जाएगी। सो नेचुरली बाय वेंचुरी इफेक्ट, अंदर का जो घर के अंदर जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी लो, सो वो सारी एयर ऊपर की तरफ सक कर लेगा, ठीक है ना। सिमिलरली हियर दिस फिगर इज टेलिंग यू द सेम थिंग। सो व्हाट हैपेंस इन हवेलीज इज, जो कोर्टयार्ड है उसके अंदर तो ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि बाहर की तरफ से वो जालियां फिल्ट्रेट कर रही है ठंडी हवा, और वो अंदर की तरफ भेज रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट डेवलप हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ से जब हवा चलती है, जो कोर्टयार्ड के ऊपर छत की तरफ से, उसमें वेंचुरी इफेक्ट लग जाता है। होता क्या है कि ऊपर से जब वो हवा जा रही है तो ऊपर हाई स्पीड में जा रही है, और ये वाला जो पूरा कोर्टयार्ड का जो सेक्शन आप देख रहे हो, दिस इज द कोर्टयार्ड, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग। सो एक कोर्टयार्ड के अंदर लो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से सारी हवा ऊपर की तरफ खिंचती हुई जाती है। इसको हम स्टैक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो wind which was moving got obstructed by this haveli, due to which the velocity of the wind over the terrace, over the courtyard increases, which creates a suction in the courtyard. So Venturi effect का प्रिंसिपल, और होता क्या है, जैसे ये करंट बनता है, ये साइकिल बनती है, तो और फ्रेश एयर डिमांड करता है वो बाहर की तरफ से, तो फ्रेश एयर और सक होके आती है बाहर की तरफ से ठंडी, क्योंकि वो जाली से फिल्टर होके आ रही है। सो दिस इज द प्रिंसिपल अप्लाइड इन दी हवेलीज। वेरी इंजीनियस वे, इजंट इट? बिल्कुल साइंस है, रियल फिजिक्स हैपनिंग इन जैसलमेर। सिमिलरली इफ यू सी इन आवर हाउसेस, कभी कभी आपने कोर्टयार्ड हाउसेस देखे होंगे, तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल है कि बाहर की तरफ हरियाली ग्रीनरी कर देते हैं और पानी भी वाटर पॉन्ड लगाते हैं, जिसकी वजह से ठंडी हवा अंदर आती है और ऊपर की जो कोर्टयार्ड में हवा आती है वो फिर वेंचुरी इफेक्ट के थ्रू एग्जिट कर जाती है। Similarly here if you see lanes of Jaisalmer, how they have done this, very closely spaced, each house, just to avoid. Okay, now this is a very interesting monument, and can you guess this monument? Internet पे तो देखा होगा, शायद आप लोग गए नहीं होंगे। It's one of the largest height-wise temples ever built in ancient time. हमारे इंडिया में ही है, साउथ इंडिया में, और बहुत ही मार्वलस। और हाँ, पीछे शुक्ला जी फिर से, क्या बात है। हमारे उस टाइम में शुक्ला जी एक फिजिक्स टीचर थे, वो तो नहीं हो, शायद उनके बेटे तो नहीं हो, बार बार आंसर। हाँ,
मीनाक्षी टेम्पल, नहीं मीनाक्षी नहीं है। और कोई? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी भी नहीं है। हाँ, न्यू कोणार्क टेम्पल, हाँ हाँ ना ना, इसको दो यार, बिल्कुल सही यार, टैलेंट बैठा हुआ है पूरे क्लास में इधर। बाराइदेश्वर टेम्पल। Bharadeshwar temple. He said it right, but not correct pronunciation. It's called Brihadeshwara temple. Very good यार, क्या नाम है? क्या नाम है अपना, फिर से बताइए। मुकेश सिंह। हाँ जी, मुकेश सिंह। मुकेश यार, कमाल की बात। It's very good that you know about this temple. आप अभी गए हो? नहीं गए, इंटरनेट पे देखा? बहुत अच्छा। क्या देखा था इसके बारे में, क्या इंटरेस्टिंग चीज है? माइक दो भाई फिर से, माइक पीपल। वेरी गुड यार, आई एम सरप्राइज कि तुम्हें सर जो मालूम। सन की रे होती हैं तो सर इस पर पड़ती हैं तो इसकी शैडो नहीं बनती है सर। एक्सीलेंट यार, ये बहुत अच्छा इसने बताया है। फिजिक्स बफ्स हैं इधर। इसने बोला कि जो सन की रेस पड़ती हैं, जो ऊपर का जो इसका टावर है, इसको विमाना भी बोलते हैं संस्कृत में। जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, विमाना। एक गोपुरम होता है, जो गेट होता है, ये टेम्पल के ऊपर जो गर्भगृह के ऊपर जो बना होता है टावर, उसको विमाना बोलते हैं। तो इसकी जो शैडो है वो जमीन पे नहीं पड़ती। However, this is not true. This is a hoax. ऐसा नहीं है, टेम्पल की शैडो पड़ती है, बट ऊपर की कैपिंग स्टोन की नहीं पड़ती है। मजेदार बात है, कैप स्टोन जो है, और उसका जो कैप स्टोन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल वंडर है। इसलिए बाय द वे, दिस इज 22 स्टोरी टेम्पल, 22 माले की बिल्डिंग के बराबर है, 66 मीटर हाइट है इसकी। इट्स मेड एंटायरली ऑफ ग्रेनाइट, जो कि साउथ इंडिया में मिलता है, लोकल स्टोन। और इसमें कहीं भी सीमेंट या प्लास्टर कुछ भी यूज नहीं करा, सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। और जो ऊपर का जो स्टोन है, बाय द वे दिस इज द इमेज ऑफ द नंदी ओवर देयर, ह्यूमंगस, यू कैन सी द स्केल ऑफ द नंदी, राइट? एंड that in that picture you can see one man standing at the bottom. Can you spot that man? उस वाले इमेज में नीचे की तरफ आपको आदमी दिख रहा है, तो आप स्केल देख सकते हो कि क्या स्केल है बृहदेश्वरा का। ठीक है ना? इट इज वन ऑफ द मोस्ट मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स एवर बिल्ट, ठीक है ना, बाय राजा राजा चोला। ही वाज अ वेरी पावरफुल रूलर दैट टाइम, द चोला डायनेस्टी। ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको प्रमाणित कर दिया गया है। सो दिस कैपिंग स्टोन इज हाउ मेनी किलोस? कोई गैस कर सकता है कितना किलो का स्टोन होगा? वाइल्ड गैस यार, गैस के लिए भी सोचना पड़ रहा है आप लोग को, बोलो ना। है 500 टन? ये तो रियली वाइल्ड गैस, दिस वाज अ रियली वाइल्ड गैस। So how much is 1 ton, by the way? 1000 kilo. So this is 80 ton stone. ठीक है ना? 80 टन स्टोन 20 माले के बिल्डिंग पे आप कैसे पहुंचाओगे? 80 टन का मतलब हो गया 80,000 किलो, राइट? If you can see the scale of the capping stone, you can see some craft persons, they are renovating the stone. तो आप देख सकते हो स्केल क्या है उसका, ठीक है ना? ये एक पूरा पत्थर उन्होंने नकाश के, एक पत्थर में उसकी नक्काशी करी, उसको ये डोमिकल स्टाइल दिया और उसको ऊपर तक ले गए, 20 माले तक। कैसे ले गए? हाँ चलो, गिव द माइक। गुड, कॉन्फिडेंस आ गया बिल्कुल। अरे उस प्लीज गिव इट टू हिम, ही विल सॉर्ट इट आउट। सर सबसे पहले मिट्टी का एक पुल बनाएंगे, टॉप से बॉटम से टॉप तक, उसको ऊपर से धीरे धीरे ले जाएंगे। आगे से हाथियों का एक, या फिर आगे से भी प्रेशर होगा, पीछे से भी प्रेशर होगा। क्या बात है यार, क्लैपिंग फॉर। ये कैसे मालूम पड़ा आपको? देखा था कहीं? देखा था ना? देखा था? चलो देखा था, इसने देखा था। बट जिसने नहीं देखा होगा वो तो बिल्कुल रहस्य में पड़ जाएगा कि यार ये कैसे ले गए होंगे। करेक्ट? ये सीन दैट बिकॉज इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, बिकॉज दिस सच अ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। बृहदेश्वरा को हर कोई सोचता है कि यार कैसे रखा था।
पिरामिड्स के स्टोन जो इतना फेमस है, उसके स्टोन भी इतने हैवी नहीं है। वो 50 टन 40 टन हैवी स्टोन, दिस इज 80 टन्स, गॉड डैम। इसको हम समझते हैं कि अगर आप एक हाथी को उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 क्रेन की मदद से एक हाथी को उठाया जा रहा है, करेक्ट। और अगर हम 80 टन को समझें तो 80 टन क्या होता है? इट इज इक्वल टू 15 एलिफेंट्स। 15 एलिफेंट्स का मतलब हो गया 15 इंटू 2 30 क्रेन्स। मॉडर्न डे युग में 30 क्रेन लग जाएंगे अगर उसको उठाना है। तो सोचो 30 क्रेन एक चीज को कैसे उठाएंगी, आपस में झगड़ा हो जाएगा क्योंकि इतना सारा, ठीक है ना। सो करा क्या इन लोगों ने, बहुत ही सरप्राइजिंगली, बिकॉज नो वन कुड फिगर आउट, क्योंकि रैंप कहीं उन्होंने देखा ही नहीं था। तो लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब आसपास के एरिया में देखा, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया कि यार 6 किलोमीटर दूर से थोड़ी कोई आएगा, दे बिल्ट अ रैंप ऑफ 6 किलोमीटर just to take it to the top. So this was their passion towards building making, temple for the Lord. So this is a temple dedicated to Lord Shiva. Okay. So they were so passionate that they were building such a monumental building. So they built a ramp of 6 kilometers. आप समझ सकते हैं 6 किलोमीटर क्या है। Archaeologists भी buff, they were astounded कि आसपास के एरिया को उन्होंने dig करा, but they could never think कि 6 किलोमीटर रेडियस में भी कुछ उनको क्लूज मिल सकते हैं। बट इन्होंने जब जीपीएस के थ्रू देखा तब उनको कोई रैम के ट्रेसेस देखे, देन दे कुड फिगर आउट कि 6 किलोमीटर लंबा रैम बना था, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट इनको मिल गई थी। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो रैम शुरू हुआ था, वो आज की डेट में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला है, वो जगह वो एग्जिस्ट करती है, और पूरा रैम्प उन्होंने बाद में हटा दिया था। सो नो वन कुड फिगर आउट किया ये ऊपर कैसे पहुंचा है। So this is the artistic illustration of how they would have done this in that period. You can see elephants and people dragging the stone to the top, right? Incredible India है भाई हमारा, है ना, isn't it? So ये टेम्पल कोई गेस कर सकता है? बहुत मुश्किल है, I know. हाँ, तुम यार शुक्ला जी फिर से खड़े हो रहे हैं क्या? जल्दी। So this is a temple in Tamil Nadu. It's called the Chidambaram temple. ठीक है ना? This is also a very exceptional temple which was built 1500 years ago. 1500 साल पुराना, 1700 साल हो गए क्योंकि 2000 से मैं कैलकुलेट करा था. It's 1700 years. So this was made that time and it's a magnificent architectural wonder. More because of its geography, where it is located. ठीक है ना? So this temple is also dedicated to Lord Shiva in the form of Lord Nataraj. Nataraj का तो हम देखा होगा सब लोगों ने. See, this is the complex of the temple. This is the gateway. And have you seen this idol? ये भगवान शिव का रुद्र रूप जो हम समझते हैं, नटराज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उस पे डेडिकेटेड है। एंड इट इज द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड विच डज नॉट हैव अ शिवलिंग। इस शिव मंदिर में शिवलिंग ही नहीं है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये शिव का एक जो अवतार है जो हम प्रकृति में देखते हैं, जिसको हम आकाश बोलते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सो जिसमें से आकाश को दर्शाता है ये टेम्पल, इसलिए इधर कोई शिवलिंग ही नहीं है, सिर्फ नटराज की मूर्ति है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नटराज ने इतना इंस्पायर करा है सारे फिजिसिस्ट को, उसका भी आगे बताऊंगा कि हुआ क्या था फिर। सो दिस इज द idol of Nataraj that is being kept over there, and people come here for meditation in large numbers. जब मैं गया था तो हजारों की संख्या में शिव भक्त और उधर की जो शैवाइट्स ट्रेडिशन है वो लोग, जनरल लोग, मेरे जैसे लोग भी जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रहे थे कि भाई क्या है भाई चिदम्बरम में ऐसा, ठीक है ना। तो इधर लोग मेडिटेशन करने आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, इतनी भीड़ आती है कि आप समझ नहीं सकते। और बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से एक कल्चर है टू मेडिटेट इन दैट टेम्पल। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरनेट
pamphlets that you can see in the social media कि चिदम्बरम geomagnetic center है क्या अर्थ का या यूनिवर्स का. चिदम्बरम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. और आप इसमें देखिए कि फॉर्म ऑफ नटराजन डांसिंग पोस्चर इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर. सो ये सब रूमर्स थे जो एक इंटरनेट पे चल रहे थे क्वेश्चन मार्क के साथ कि ये बोलते हैं इनके हिसाब से जो रूमर्स चले थे या जो एंशिएंट टाइम से जो जिसके लिए बना था ये सच है कि गलत है हमें नहीं मालूम है. वी विल एक्सप्लोर दैट. सो दे सेड कि ये जो टेम्पल है मैग्नेटिक इक्वेटर पे बना हुआ है. As you know, Earth also behaves as magnet. You know why? Earth magnet क्यों की तरह behave क्यों करती है? किसी को मालूम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही. डर के मत बोलो यार, ये सही गलत ही तो बोलना है. क्रस्ट में आयरन प्रेजेंट है. वेरी गुड यार. क्या नाम है आपका? हाँ, श्रेया के लिए ताली हो जाए प्लीज यार. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोल्टन आयरन एंड द अर्थ रिवॉल्विंग एंड ओके अराउंड इट्स एक्सिस, तो अर्थ भी घूम रही है. तो उस घूमने की वजह से होता क्या है कि मोल्टन आयरन जब घूमता है अंदर, उसका फ्लूइड घूमता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज अर्थ के अंदर होता है. तो जो हम नॉर्थ पोल देखते हैं, जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वो एक्चुअली साउथ है अर्थ की मैग्नेट का. ठीक है ना? सो इफ यू कैन सी दिस इज द विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक पोल से दूसरे पोल पे जा रही है. तो जो नीचे का साउथ पोल है वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है. तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे इसका रोटेशन है, इधर भी ऐसे. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सन की रेस से भी बचाती है. ठीक है ना? जो सन की हार्मफुल रेस आती हैं, सोलर विंड्स, उससे भी बचाती है. सो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट wherein the north pole is the actual magnetic earth's magnet south. And if you see here, बहुत इंटरेस्टिंग आप देखिए इसमें, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को देखें, जो अर्थ की मैग्नेट है वो जो नॉर्थ पोल पे अगर आप देखें या पोल्स पे देखें अगर हम, तो पोल्स पे अप्रोक्सीमेटली सेम है, विच यू कैन सी 60,000. ओके, और नीचे भी 60,000 है. और अगर आप बीच में देखें वो इंटेंसिटी कितनी हो गई है? 30,000, जस्ट हाफ. तो वो जो एरिया है जहां पे इंटेंसिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर. सो एज यू कैन सी, इफ यू इमेजिन अ 3D स्फीयर व्हिच इज द मॉडल ऑफ अर्थ. 3D स्फीयर होता है ना, ग्लोब. तो उसको आप इमेजिन करो तो रेस चारों तरफ से निकल रही है 3 डायमेंशनली, राइट? तो उसमें बीच वाला जो पोर्शन होता है, जो कि आप ये देख रहे हो, ये जो लाइन जा रही है मैग्नेटिक इक्वेटर की, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन where the earth's magnetic force is the minimum. ठीक है ना? अब हम देखते हैं चिदम्बरम की लोकेशन कहां है. तो चिदम्बरम, as you can see, it is somewhere in तमिलनाडु here. आपने देखा होगा ये अर्थ, ये जो इंडिया का मैप है उसकी नीचे की तरफ एक ह्यूमन फेस बनता है. देखा आपने? ये फोरहेड है, ये नोज है, ये उसका माउथ है जो श्रीलंका से अटैच होता है. ठीक है ना? So somewhere here it is around the nose is Chidambaram. And if you see the magnetic equator, somewhere here it is going. This is a rough diagram. This is not the correct diagram. But I'm just want to tell you कि how it looks like in a 3D plane. अगर हम एक plane काटेंगे तो ये जहां जहां कटेगा वो पूरा magnetic equator है चारों तरफ से. ठीक है ना? ये magnetic equator का जो plane है. So this is roughly the diagram which shows कि magnetic equator ग्लोब पे, जो ओपन ग्लोब है, उसमें कहां से निकलता है. तो अगर आप इंडिया को देखोगे तो वो साउथ से निकल रहा है, समवेयर फ्रॉम तमिलनाडु, राइट? यू सी दिस? कैन यू स्पॉट इंडिया हियर? ओके. एंड हियर इफ यू सी कि ये जीरो लाइन जो जा रही है मैग्नेटिक इक्वेटर की, ये समवेयर साउथ से निकल रही है, वर्ल्ड मैग्नेटिक चार्ट. एंड एज यू नो कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. Do you know this? Our human body also behaves like a magnet. So this was experimented by one of the scientists whose name is William Jones. So he gave a abstract on an article wherein he stated that electromagnetic emission from humans during focus intent. This means कि जब भी आप एक फोकस तरीके से बैठते हैं
या कि हम बोले मेडिटेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन निकलता है बॉडी में. सो ही प्रूव्ड दैट because the people outside in the West, in the US, they are very good at documenting things, to knowing the truth, because they do a lot of experiments in their labs. हमें तो मालूम है हमारे, क्योंकि एंशियंट नॉलेज हमें मालूम है, लेकिन उसका प्रूफ हम नहीं दे सकते, राइट? तो बाहर वाले प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत आगे हैं. तो दे ही रिसर्च की मैग्नेटिक एमिशन निकलता है जब हम लोग एक ध्यान मुद्रा में बैठते हैं. और अगर आप WHO की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट भी देखेंगे, तो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बॉडी एज दे इन्फ्लुएंस एनी अदर मटेरियल मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. व्हेन electric fields act on conductive materials, they influence the distribution of electric charges at the surface. They cause current to flow through the body to the ground. तो इसका मतलब अगर हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी या किसी मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बगल में होंगे तो अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होगा. तो इसलिए नॉर्थ पोल में रहना इतना आसान नहीं है. बोलते हैं जो पोल्स पे जब आप रहने जाओगे तो आपका पूरा बॉडी का जो अंदर करंट सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है बॉडी के अंदर भी, पल्सेस, नर्व पल्सेस जिसको हम बोलते हैं, नर्व पल्स बहुत तेजी से रिएक्ट करता है. वो जब भी हम छूते हैं तो इट गोज टू द ब्रेन एज अ नर्व पल्स, लाइक अ इलेक्ट्रिक सिग्नल. तो जब भी हम पोल्स की तरफ जाते हैं जहां पे अर्थ की मैग्नेट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में, तो उधर चार्ज, हमारी पूरी बॉडी के अंदर चार्जेस पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो एज वी नो व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन सेज कि दिस ऑल रिलेटेड, आई विल रिलेट एवरीथिंग टुगेदर. So birds can see magnetic earth. आपने देखा होगा कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, साइबेरिया से इंडिया भी आती हैं, आपके इधर भरतपुर बर्ड सेंचुरी में भी आती है, ठीक है ना, फ्रॉम साइबेरिया. सो जस्ट हैव यू वंडर्ड कि वो डायरेक्शन कैसे मालूम करती हैं? तो साइंटिस्ट को भी ये बफ करा कि यार ये कैसे करती हैं, डायरेक्शन का सेंस कैसे आता है. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हु प्रूव्ड कि बर्ड्स कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड. सो उसने एक सिमुलेशन बनाया, कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसमें अगर आप देखें बर्ड नीचे है और नॉर्थ वो कैसे देखती होगी बर्ड, उसका सिमुलेशन बनाया, कंप्यूटर सिमुलेटेड. ओके, सो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा उसको डिस्टॉर्ट देखेगा, वेस्ट की तरफ और भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा. सो दे हैव अ सेंस, देयर आईज लिबरेट सम पिगमेंट जो उनको ये उनकी आई को डिस्टॉर्ट करता है. तो अगर वो बिल्कुल सही है, इक्विवेलेंट है जैसे नॉर्थ में, तो इट मींस दे आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना, द बर्ड्स. और फिर सब लोग को ये डैजल करा कि भाई अगर बर्ड्स देख सकती हैं जो कि लिविंग क्रीचर्स हैं, तो हम लोग क्यों नहीं देख सकते मैग्नेटिक फील्ड, हम क्यों नहीं सेंस कर सकते? तो इस पे भी रिसर्च हुई जिसपे मालूम पड़ा कि पीपल आल्सो कैन सेंस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ब्रेन वेव सजेस्ट, तो एक थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने ब्रेन वेव्स को स्टडी करा. सो ही गॉट टू नो कि हम लोग भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर पाते हैं. So eventually चिदम्बरम में क्या हो रहा है, if you see it in retrospective, if you go back, तो चिदम्बरम is somewhere here, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम है, ठीक है ना, हम पे असर कम पड़ रहा है. और अगर आप देखो ह्यूमन की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ती है, हेड टू टो. तो होता क्या है कि जब आप अगर उस पृथ्वी पे अगर आप बैठे हैं, तमिलनाडु में कहीं बैठे हैं इस तरफ चिदम्बरम में, तो जो आपकी रेज होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस से, इजंट इट? जहां पे आप बैठे हैं, जहां पे मैं खड़ा हूं, तो उसके परपेंडिकुलर हो गया मैं अर्थ के सरफेस पे. तो उस केस में जो मैग्नेटिक वेव्स हमारे अंदर से निकल रही हैं वो कब डिस्टॉर्ट नहीं होती हैं, जस्ट बिकॉज वी आर ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर. इफ वी डू द सेम थिंग ऑन द पोल्स, दे विल नॉट बी इन दी कॉन्करेंट लाइंस में. जो आपको स्मूथ लाइंस दिख रही हैं आपको इधर, ऐसे नहीं होगा, बहुत ही डिफरेंट डायग्राम होगा, घिचड़ा पिछड़ा पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा ये सारी वेव्स. तो दिस इज इन सिंक्रोनस टू दी मैग्नेटिक अर्थ. मैग्नेटिक अर्थ में भी आपने देखा स्मूथ लाइंस चल रही हैं और हमारी बॉडी में भी स्मूथ लाइंस चल रही हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब हम अर्थ की मैग्नेट के साथ हमारा जो बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना. तो यही चीज चिदम्बरम में होती है, इसीलिए सारे लोग मेडिटेट करने आते हैं. और जस्ट इमेजिन कि इतने सालों पहले इन्होंने कैसे समझा होगा कि इधर अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर है. dazzling or not? And finally, if you see, this is Lord Nataraj's
आइडल या आप इसको स्टैचू बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू प्लेस्ड एट CERN CERN, which is the largest particle physics lab on earth, located in Geneva, Switzerland. तो आप ये सोचिए, इस नटराज को उन्होंने समझा और उधर स्टैचू लगा दिया, जिसको हम लोग नहीं लगाते, उन्होंने अपने बिल्डिंग के फ्रंट में लगाई हुई इतनी बड़ी स्टैचू। देख रहे हो ना आप, कितनी स्केल, आदमियों की स्केल देख रहे हो, कितनी बड़ी स्टैचू लगाई है नटराज की। So we have come to the end, but before leaving, I will say कि have you seen this movie? क्या नाम है इसका? तो आप लोग तो नहीं हो भी गए तो क्या हुआ? हाँ? तो उसमें इसका नाम क्या था? बाय द वे, वायरस। और पूरा नाम क्या था? क्या बात है यार, ये तो तुम्हें सब मालूम है, सारे डायलॉग्स भी मालूम है। गुड। वीयू सहस्रबुद्धे, he asked कि he said, मतलब he was giving a presentation, उसने बोला कि एक फाउंटेन पेन बनाया था जो कि स्पेस में भी काम कर सकता है आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो साइंटिस्ट इन्वेंटेड दिस पेन। तो उस पे ये कौन है? रैंचो श्यामल दास चांचर, रैंचो। तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते हम स्पेस में, सारा पैसा फाउंटेन पेन में लगाना क्यों? तो उस पे वायरस क्या बोलता है? आई विल गेट बैक टू दिस। मतलब ही डजंट हैव द आंसर, ही वाज डैज़ल्ड कि यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो टू कंक्लूड आई विल से कि नॉलेज इज हैविंग द राइट आंसर एंड व्हाट इंटेलिजेंट इज आस्किंग दी। तो सवाल पूछना जरूरी है, जवाब देना जरूरी है, सही सवाल पूछना, ठीक है ना? सो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस विल गेट यू द राइट आंसर्स। सो विद दैट आई विल फिनिश ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। थैंक यू।